Jesus.
Turn to Hebrews, the book of Hebrews. आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे इब्रानियों की पत्री, the second chapter. उसका दूसरा अध्याय। We are reading from verse 1. उसके पहले वचन से हम पढ़ेंगे। Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। For if the word spoken by the angels was steadfast, and every transgression and disobedience received a just recompense of reward, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by them that heard him? क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। God also bearing them witness, both with signs and wonders, and with diverse miracles and gifts of the Holy Ghost, according to His own will. और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। For unto the angels hath He not put in subjection the worlds to come, whereof we speak. उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं
स्वर्गदूतों के अधीन ना किया, but one in a certain place testified, saying, "What is man, thou art mindful of him, or the Son of Man, that thou visitest him?" वरन किसी ने कहीं यह गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। Thou hast made him little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and hast set him over the works of thy hands. तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया, तूने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। Thou hast put all things in subjection under his feet. For in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not all things put under him. तूने सब कुछ उसके पांव के नीचे कर दिया, इसलिए जबकि उसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया, तो उसने कुछ भी रखना छोड़ा जो उसके अधीन ना हो। पर हम अब तक सब कुछ उसके अधीन नहीं देखते। But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death for every man. और हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। For it became him from whom are all things, and by whom are all things, in bringing many sons unto glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। Amen. आमेन। You, the writer of the Hebrews, is wanting to draw attention of the believers और इब्रानियों का जो लेखक है, वो अपने पाठकों का ध्यान इस बात की ओर लगाना चाह रहा है to the one and the only source of their salvation, और उनके उद्धार का एकमात्र जो साधन है, not only for salvation, for blessing, ना केवल उद्धार और आशीषों का जो स्रोत है, is the Lord Jesus Christ. वो यीशु मसीह है। He is wanting them to see. और वो चाहता है कि वे लोग इस बात को देखें। Though the angels were so powerful and so glorious and so divine, जबकि स्वर्गदूत इतने सामर्थी और इतने महिमामय हैं, and the words they spake were steadfast, और जो वचन उन स्वर्गदूतों ने कहा वो अब तक स्थिर है, and whatever they said came to pass, और जो चीजें कही वो वैसा ही हुआ, then he goes on to say, तब वो आगे बोलता है, but yet परंतु अब भी the source of every blessing हर एक आशीषों का जो स्रोत है, is the Lord Jesus Christ. वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। Amen. आमेन। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? Almost all religions demand certain things. यहाँ तक कि सारे जो धर्म हैं वो कुछ चीजों की मांग करते हैं। There are so many things to do and so many things not to do. और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो करना है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं करना है। That's what the religion is all about. और ये इसी के ऊपर सारा धर्म आधारित है। They are bound with set of laws. और वे व्यवस्था के उस ढांचे से बंधे हुए हैं। They are bound with certain set of traditions. और वे रीति रिवाज की कुछ परंपराओं के अनुरूप बंधे हुए हैं। They are bound with certain rituals they have to perform. और कुछ परंपराओं से वे बंधे हुए हैं। And every religion wants something to be done, some works to be done. और हर एक धर्म ये चाहता है कि कुछ ऐसे कामों को वे करें। And people think that doing good works will bring them salvation. और लोग इस बात को सोचते हैं कि उनके अच्छे काम उद्धार को लेकर के आ सकता है। But they keep on doing it throughout the year. परंतु वे साल इस बात को करते रहते हैं। Year by year. और सालों के पश्चात वो
लगातार उस काम को करते रहते हैं nothing seems to happen. और उनको कोई भी चीज होते हुए दिखता नहीं है, Because our works cannot buy salvation. क्योंकि हमारे काम उद्धार को खरीद नहीं सकते। The law of Moses, मूसा की जो व्यवस्था थी, he said, "Thou shalt not, और उसने कहा ऐसा नहीं करना, thou shalt not do this, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, thou shalt not murder, तू हत्या ना करना, you shall not commit adultery, तू व्यभिचार नहीं करना, you shall not worship idols, तू मूर्ति की पूजा नहीं करना, you shall not do this." तू ऐसा नहीं करना। And then he goes on to say, तब उसके पश्चात वो कहता है, "Honor thy father and mother, अपने माता और पिता का सम्मान करना, honor the Lord's day." प्रभु के दिन का आदर करना। So there are so many do's and so many don'ts. बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो करना है और बहुत सारी बातें हैं जो नहीं करना है। If you slip on one, you're gone. और यदि आप एक को भी चूक गए तो आप हमेशा के लिए चूक गए। Nobody could keep the whole law. कोई भी व्यक्ति पूरी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता। So law was only a school teacher showing us what is right and what is wrong. और व्यवस्था जो है वो केवल एक शिक्षा थी जो आपको और मुझको बता सके क्या सही है और क्या गलत है। But in Jesus Christ, परंतु प्रभु यीशु मसीह में the whole thing, God's plan was revealed to us. परमेश्वर की सारी योजनाएं यीशु मसीह में हमारे सामने प्रकट किया गया। So the writer of the Hebrews was saying इसलिए इब्रानियों का लेखक बोलता है that by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से that Jesus should taste death for every man. कि यीशु मसीह को हर एक मनुष्य के अपराधों के लिए मृत्यु का स्वाद को चखना था। Amen. आमीन। Just see this. इसको देखें। If you read the book of Hebrews, यदि आप इब्रानियों की पत्री को पढ़ेंगे, you will find that the merciful God is opening His door for sinners to come in. वहाँ पर हम पाएंगे कि दयालु परमेश्वर पापियों के लिए अपने द्वार को खोलता है ताकि आप और मैं वहाँ आ सकें। Can you imagine? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं? What is written here? जो यहाँ पर लिखा हुआ है, Jesus यीशु मसीह should taste death कि यीशु मसीह मृत्यु का स्वाद को चखे for उनके लिए, every man. हर एक मनुष्य के लिए। Amen. आमीन। Not for few, कुछ लोगों के लिए नहीं, for everybody. हर एक मानव जाति के लिए। Then he goes on to say, तब उसके पश्चात वो कहता है, he says वो बोलता है in 10th verse, 10वें वचन में, for it became him क्योंकि उसके लिए, from whom जिसके लिए द्वारा are all things. सारी चीजों की सृष्टि की गई। Amen. आमीन। Because in 9th verse he says, क्योंकि 9वें वचन में वो बोलता है, but we see Jesus. परंतु हम यीशु को वहां देखते हैं। You've seen angels, आपने स्वर्गदूतों को देखा, you've seen the law, आपने व्यवस्था को देखा, you've seen God's men, seen God's men. और आपने वहां पर परमेश्वर के लोगों को देखा। Now he's saying, अब वो कहता है, but we see Jesus. अब हम यीशु मसीह को देखते In हैं। his human form, he was little lower than the angels. और वो अपने मानवीय शरीर में स्वर्गदूत से थोड़ा ही कम था। He took on the form of man वो मनुष्य का रूप लिया for the suffering of death. और मृत्यु का स्वाद को चखने के लिए। Now he's crowned with glory. अब वो महिमा के मुकुट से नवाजा गया है। Now he's crowned with honor. अब वो आदर के मुकुट से नवाजा गया है। Then he goes on to say तब वो आगे बोलता है, that by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया, by the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा he should taste death वो मृत्यु का स्वाद को चखना था for you. आपके लिए। Amen. Amen. And for me. और मेरे And the लिए। scripture says, और वचन बोलता है, Jesus tasted death for all men. यीशु मसीह ने संपूर्ण ब्रह्मांड के मानव जाति के लिए मृत्यु का स्वाद को चखा। He is the source of everything. वो सारे चीजों का केंद्र है। He is not one of the option. और वो कोई एक विकल्प हमारे लिए नहीं है। Choose out of 10, one. 10 में से आप किसी एक का चुनाव करें, Or maybe out of 5, choose one. या 5 में से किसी एक का चुनाव करें। He is the only one. वो एकमात्र उद्धार करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There is no other name given under heaven among men और कोई भी ऐसा नाम जो स्वर्ग के नीचे नहीं दिया गया by which men shall be saved. जिस नाम के द्वारा मनुष्य
जाति उद्धार को पा सके। Are you here? क्या आप यहाँ हैं? Hallelujah. हालेलुया। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलता है, in him was life. उसमें जीवन था। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। In him was life. उसमें जीवन था Life was the light of man. और वही जीवन मनुष्य की ज्योति बन गई। So something of what was said earlier in John, और इससे पहले यूहन्ना में जो कहा गया, the writer of Hebrews is writing it again. और फिर से इब्रानियों का लेखक इस बात को लिखता है। The scripture says, पवित्र शास्त्र बोलता है, in him we live, उसके द्वारा उसमें हम जीते हैं, in him we move, उसमें हम हलचल करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। in him we have a being. और उसमें ही हमारी सब कुछ है। And Jesus said, और यीशु ने कहा without me you can do nothing. कि मेरे द्वारा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Amen. Amen. All our education, हमारी सारी शिक्षाएं, thank God for education. धन्यवाद शिक्षाओं के लिए। But then the brain God has given you is given by God. परंतु जो बुद्धि आपके पास है वो परमेश्वर के द्वारा दी हुई है। Amen. Amen. Thank God for your job. परमेश्वर का धन्यवाद आपके कार्य के लिए। Thank God for your abilities. परमेश्वर का धन्यवाद आपकी योग्यताओं के लिए। What Jesus is saying, यीशु मसीह कहता है, without me you can do nothing. बिना मेरे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Hallelujah. Amen. Some people say I am a self-made man. और कुछ लोग कहते हैं मैंने अपने स्वयं को बनाया है। But who gave you the hands? Who gave you the health? परंतु किसने आपको हाथ और अच्छा स्वास्थ्य दिया? Who gave you your feet? किसने आपको पाँव दिए? Who gave you the brains? किसने आपको बुद्धि दिया? Don't forget God. परमेश्वर को कदापि ना भूलें। Hallelujah. हालेलुया। I am the vine. मैं दाखलता हूँ You are the branches. और तुम उसकी डालियाँ If you हो। abide in me, और यदि तुम मुझ में बने रहोगे you will bring forth fruit. तो तुम निश्चय बहुत फल लेकर के Otherwise, आओगे। you'll be struggling. अन्यथा हम जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। Amen. Amen. The source जो हमारा स्रोत है, of every blessing हमारी हर एक आशीषों का जो मूल स्रोत है, is God. वो केवल परमेश्वर एकमात्र है। Hallelujah. Amen. All good gifts सारे अच्छे वरदान comes from the Father of lights, वो ज्योतियों के पिता की ओर से आती है, in whom there is no variableness, neither shadow of turning. जिसमें कोई भी परछाई और दुख नहीं है। Can you imagine? आप इस बात की क्या कल्पना कर सकते If the हैं? sun had not risen today, यदि आज के दिन सूर्य उदय नहीं हुआ होता what would have happened? तो क्या हुआ होता? Man boasts of himself, मनुष्य अपने स्वयं पर गर्व करता है, even though he's a sinner. यहाँ तक कि वो पापी होने के बावजूद Still, भी, God is merciful. तो भी परमेश्वर कितना अनुग्रहकारी है। Amen. Amen. When you bore under the earth, He gives you water. जब आप भूमि के नीचे भूमि को खोदते हैं और परमेश्वर उसमें स्रोत को देता है। Amen. Amen. Not for 1 week, एक सप्ताह के लिए नहीं, for the whole year. आपके जीवन पर्यंत समय के लिए। Hallelujah. Amen. 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 The milk you get in your house, जो दूध आपके घर में आता है, that also comes through God's creation. वो भी परमेश्वर की सृष्टि के माध्यम से ही आता है। Amen. Amen. So many cans of milk और कितने कैन भर के दूध, is all from the buffaloes and the cows. वो सारे गाय और भैंसों से आते हैं। Amen. Amen. You don't work for honey. You can't make honey. आप हनी शहद को बना नहीं सकते। You will make artificial ones. और यदि आप बनाएंगे तो वो एक आर्टिफिशियल के समान हो सकता It है। looks good. It looks like some people ditch you also. और By showing this is the original. और कुछ लोग आपको इस प्रकार से धोखा भी दे सकते हैं कि ये असली शहद है करके। Amen. आमीन। But who makes it? परंतु कौन है जो उस शहद को बनाता है? The bees. वो जो मधुमक्खी है। And you extract it from them. और आप उसमें से आप प्राप्त करते हैं Hardly anything. लगभग कुछ ही। Even what we are eating is not made by man. और जो हम खाते हैं वो भी मनुष्य नहीं बना रहा है। You go to the market, vegetable market. आप सब्जी मंडियों में जाएं,
variety of vegetables. और वहाँ पर सब्जियों के विभिन्न प्रकार आपको मिल जाएंगे। God has made it. परमेश्वर ने उन चीजों को भी बनाया है। Hallelujah. Amen. You go to the fruit shop. आप फल के बाजार में चले जाएं, Variety of fruits. वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल आपको मिल जाएंगे। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद हो, He is merciful. वो अनुग्रहकारी है। Hallelujah. Amen. He gives things for us to be satisfied. वो चीजों को हमें यूं ही देता है कि आप और मैं तृप्त हो जाएं। As in the natural, जैसे स्वाभाविक रूप से, so is in the spiritual. वैसे ही आत्मिक रूप से भी वो हमें तृप्त करता If है। God is supplying our natural needs, यदि परमेश्वर हमारी सांसारिक और स्वाभाविक चीजों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, He will supply our spiritual needs वो also. हमारे आत्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। Amen. Amen. Nothing we can do. हम कुछ भी नहीं करते हैं। Even the king is fed by the field. यहाँ तक कि राजा भी भूमि के उपज के द्वारा तृप्त किया जाता है। He doesn't, because he's a king, he cannot live in air. और क्योंकि वो राजा है, वो हवा में नहीं जी सकता। Love and fresh air. Just breathing air. और केवल वो हवा को खा करके नहीं जी सकता। No food, कोई भोजन नहीं, no water. कोई पानी नहीं। Amen. आमेन। Raj is giving a good smile. He's remembering some ancient things. वो कुछ पुरानी चीजों को पास्टर राज याद कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? आप यहाँ पर हैं। Amen. आमेन। When we can't do anything, we can't make anything. जब हम कुछ भी चीजों को बना नहीं सकते, We're receiving it from God. हम उसे परमेश्वर के द्वारा प्राप्त करते हैं। Even the seed we sow, the harvest is given by God. यहाँ तक कि जो बीज भी हम बोते हैं, उसका अच्छा फसल का देने वाला परमेश्वर है। Amen. आमेन। Everything is given by God. हर एक चीज परमेश्वर के द्वारा दी जाती है। The rain is also given by God. जो बारिश है वो भी परमेश्वर ही देने वाला है। Sunshine is given by God. सूरज की जो चमक है वो भी परमेश्वर देने वाला है। All natural things to sustain our physical life, God is given by God. हर एक प्राकृतिक चीज जो हमें संभालती है उसका देने वाला परमेश्वर है। So also, उसी रीति से God wants to supply all our spiritual needs. परमेश्वर हमारे सारे आत्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is the source of every blessing. यीशु मसीह सारे आशीषों का मूल स्रोत है। In Christ everything changes. और मसीह यीशु में हर एक चीजें बदल जाती है। Now the benefits of every blessing, earlier it was by merit. और सारे चीजों का जो आशीषों का जो स्रोत है वो यीशु मसीह है। Suppose, मान लीजिए if you want blessing, यदि आपको आशीष चाहिए, we have to work for it, आपको उसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। and we get a merit, like we excel in things, and that we can receive the blessing. ताकि उन चीजों में हम निपुण हो जाए और उसकी आशीषों को पा सके। But it is not so in Christ. परंतु मसीह यीशु में ऐसा नहीं है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Now every benefit of every blessing is by Christ's merit, what He has done for us on the अब cross. हर एक आशीष जिसको हम प्राप्त करते हैं उसका मूल स्रोत यीशु मसीह है, जिसके द्वारा ये आशीषें हमको मिलती है। Amen. आमेन। You know, when we pray for our food, अब जब हम अपने भोजन के लिए प्रार्थना करते हैं, that is the shortest prayer. वो सबसे छोटी प्रार्थना होती I है। don't know how much we mean. मुझे पता नहीं उसका हम क्या अर्थ और कितना गहरा अर्थ लगाते हैं। Don't pray very long one also. अब इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आप लंबी चौड़ी प्रार्थना करें। One time one person was told to pray for food. और एक बार एक व्यक्ति को खाने के लिए, भोजन के लिए प्रार्थना करने कहा गया। So the food was all served. सारे भोजन वहाँ पर पेश के तैयार थे। I said, Pastor Sahib, you pray. और किसी ने कहा, पास्टर साहब आप प्रार्थना करिए। He started from the farmer. उनकी प्रार्थना प्रारंभ हुई किसान से। And the field. उसके बाद भूमि पर वो आए। And the rain. उसके बाद बारिश पर वो आए। And the harvest. उसके बाद उस फसल की कटनी पर। I'm not joking.
मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। And he came till the shop also. उसके बाद वो उस दुकान तक आए जहाँ पर अनाज खरीदते हैं। The shopkeeper, the baniya, उस दुकानदार, वो बनिया, how he kept the wheat for us. उन्होंने कैसे इस खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा हमारे लिए। And then full process. उसके बाद सारी प्रक्रिया को अपनी प्रार्थना भी करने लगे। Don't pray like that. आप ऐसी भी प्रार्थना न करें। Nobody is listening to prayer. The food is gone cold. कोई आपकी प्रार्थना उस समय ध्यान नहीं देगा क्योंकि भोजन सब ठंडा हो रहा है। But he's carrying on. परंतु उनकी प्रार्थना अब भी जारी रही। If he mentions the word dayalu, so he gives 5 attributes of dayalu. और यदि आप दयालु बोलेंगे तो दयालुता के वो 5 चरित्र आपको बता देंगे गुण In prayer. उनकी प्रार्थना में। And then उसके पश्चात if God is gracious, so he begins another few lines of gracious. और यदि आप बोलेंगे परमेश्वर अनुग्रहकारी तो अनुग्रह पर वो अपना कुछ और विचार रखेंगे। If he says God supplies our needs, so he prays 5 more sentences of his supply. यदि आप बोलेंगे परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है तो उस पे भी वो 5 चीजों को बोलेंगे। That is not prayer. ये प्रार्थना वास्तव में नहीं है। Who are you praying to? आप Are you praying for the people? आप किससे प्रार्थना कर रहे हैं? किसके लिए? क्या लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? Are you showing it to people or to God? आप लोगों को दिखा रहे हैं या परमेश्वर से दुआ कर रहे हैं? Amen. आमीन। Listen. सुने, One time on child's birthday. एक समय की बात है, एक बच्चे का बर्थडे था, जन्मदिन था। And the child was very happy. और बच्चा बहुत खुश था अपने जन्मदिन को लेकर के। They put the candles. उन्होंने वहाँ पर मोमबत्ती रखा And they burnt. और उस मोमबत्ती को जला दिए। And said, Pastor, some pray. और उन्होंने कहा, पास्टर साहब आप प्रार्थना कर दीजिए। Hallelujah, 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 hallelujah. Half candle is going down. और उनके हालेलुया हालेलुया में ही स्तुति 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 वो अकेले में करो भैया घर में। और स्तुति करते ही आधा मोमबत्ती जल गया। आप अकेले अपने घर में ऐसा ना करो। स्तुति धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया स्तुति धन्यवाद स्तुति धन्यवाद। चाइल्ड इज क्राइंग। बच्चा बेचारा रोने लगा। कैंडल इज गॉट बेरिड इनसाइड। और जो मोमबत्ती था वो केक के अंदर दफन हो गया। So you must know how to pray what? तो आपको मालूम होना चाहिए वास्तव में प्रार्थना क्या और कैसा करना है। You go to hospital. आप अस्पताल में जाते हैं। Don't shout there and pray. वहाँ पर आप ऊंची आवाज से चीख पुकार के प्रार्थना ना करें। ICU unit others are also sick. वहाँ पर और भी दूसरे लोग हैं जो अस्वस्थ और बीमार हैं। Some people's volume is naturally very loud. और कुछ लोगों का जो आवाज है वो प्राकृतिक रूप से बहुत तेज और भारी है। प्राकृतिक रूप से भी अच्छे से बोलते हैं। हालेलुया। आमीन। आमीन। Go to sick person. आप जब किसी बीमार के पास जा रहे हैं, Bible says lay hands on the sick will recover. बाइबल बोलती है बीमारों पर हाथ रखो और प्रभु से चंगा करेगा। Now you get inside that ICU unit and you say, निकल यीशु मसीह के नाम में निकल जा। आप ICU के यूनिट में गए और बोले निकल यीशु मसीह के नाम से। And then the doctor says तुम निकल। डॉक्टर आके बोलेगा तुम बाहर जाओ। Don't disgrace the name of Christ. आप यीशु मसीह के नाम को इतना हल्का में ना लें। Sickness is not going to go because of your volume. बीमारी आपके आवाज की गति के कारण नहीं जाएगा। It is going to go by the name of Jesus. वो यीशु मसीह के नाम से उस शरीर से जाएगा। Amen. Amen. So just lay hands and say in Jesus' name. केवल उस पर हाथ रखे यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमीन। The source is Christ. सारी बातों का जो स्रोत है वो यीशु मसीह है। If God is using somebody to heal the sick, यदि परमेश्वर किसी को इस्तेमाल कर रहा है बीमारों को चंगा करने के लिए, remember, इस बात को हमेशा स्मरण रखें। the sick is getting healed because of the name of Jesus, not because of the preacher. जो बीमार चंगा हो रहा है वो प्रचारक के वजह से नहीं परंतु यीशु मसीह के नाम के कारण।
Amen. आमेन। So all glory must go to God. तो सारी महिमा जो है वो केवल परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। Amen. आमेन। Thank God for God's people. परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु के लोगों के लिए। Sometimes God uses certain people. कई बार परमेश्वर कुछ लोगों को इस्तेमाल करता है। He might use them, but the healing comes through Christ and Christ alone. परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, परंतु चंगाई केवल और केवल यीशु के द्वारा ही आता है। Amen. 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 So always give all glory to Christ. इसलिए सारा महिमा केवल यीशु मसीह के नाम को दें। You can respect the man of God, आप परमेश्वर के जन का आदर और सम्मान करें, but he cannot come to the place of worship. परंतु इस बात को हमेशा ध्यान रखें, वो व्यक्ति आराधना का स्थान कदापि नहीं ले सकता। Amen. Amen. And even the men of God should tell the people who are calling them, please don't give me so much honor that you will take away the glory of God. परंतु साथ ही साथ जो प्रभु का दास वहाँ बुलाया गया है, उसे चाहिए कि वो लोगों को स्पष्ट बोले, प्रभु का जो जगह है वो मुझे नहीं चाहिए, वो केवल प्रभु का है। Amen. Amen. Don't honor me with such honor इतने आदर और सम्मान के साथ आप मेरा सम्मान न करें, that the Christ will be hidden and only man will be seen. ताकि यीशु मसीह कहीं पीछे रह जाए और मनुष्य सामने हो जाए। God will not give his glory to any man. परमेश्वर अपनी महिमा किसी व्यक्ति को नहीं देता। Hallelujah. Amen. 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 So Jesus is the source. यीशु मसीह सारी बातों का स्रोत The है। whole scene is changed. पूरा परिदृश्य अब बदल गया। Now he is offering people. अब वो लोगों को दे रहा है। The religion धर्म is reaching to God. वो केवल परमेश्वर तक जानने के लिए था, They are trying to reach God. और वे प्रयास करते हैं कि उस अपने धर्म के द्वारा वो परमेश्वर तक पहुंच सके। Christ परंतु मसीह is reaching to man. वो मनुष्य से जाति तक पहुंच गया। Hallelujah. Amen. That's the difference. यही तो एक बड़ा भेद है। So Jesus, because he's the source, he's offering things. क्योंकि यीशु मसीह सारी चीजों का स्रोत है, वो सारी चीजों को देता है। We like to have offer. और हम भी कई बार लोगों को ऐसा अवसर देना चाहते हैं, Buy one get two free. एक खरीदो और दो मुफ्त में पाओ। Buy one get four. एक खरीदो चार पाओ। Offer. ये अवसर है। Offer. ऑफर अवसर Same चीज. सेम चीज है। Same. अवसर के साथ ऑफर है. अवसर के साथ ऑफर है आपके लिए। All right. ठीक है। So when there is an offer, जब वहाँ पर ऐसा ऑफर है, so people rush to get it तो लोग वहाँ पर प्रयास करते हैं कि वो जल्दी जाकर के उसे लें, because क्योंकि they are not paying for the other two articles. क्योंकि जो दूसरे चीजें उसके साथ मुफ्त में हैं, उसके लिए उन्हें कीमत चुकाने की आवश्यकता नहीं है। So Jesus is offering. इसलिए यीशु मसीह ऐसा प्रावधान, ऐसा अवसर रखा है। And in the very early in his ministry, he offered. और अपनी सेवकाई के आरंभ में ही उसने ऐसा अवसर दिया। What was it? वो क्या था? He says, "Come to me, all you that labor and are heavy laden. उसने कहा, हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What an offer! वो ऑफर क्या था? And you know, people are running for rest. और लोग भाग रहे थे शांति और आराम के लिए। Some people don't want rest also. और कुछ लोगों को आराम नहीं चाहिए रहता है। They love confusion. और उन्हें इतना पसंद है असमंजस में रहना। They love fight and quarreling. और उन्हें झगड़ा और विवाद में रहना पसंद है। You read the book of Proverbs. आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़िए। It says, वो वहाँ पर बोलता है, their food is to do evil. और उनका भोजन ये है कि वो बुरा करें। If they don't do evil, they will not sleep. यदि वे बुरा नहीं करेंगे तो वे आराम की नींद नहीं सो पाएंगे। Some people are always like the wicked is like the sea which is tossed up and down. और दुष्ट एक ऐसा है जो मानो ऊपर और नीचे इधर उधर होता रहता है। Like the waves of the sea. और समुद्र के लहरों के समान वो ऊपर नीचे होता है। There is no peace to the wicked. वहाँ पर उसके पास कोई शांति नहीं है। Where will you get rest? आपको आराम कहाँ मिलेगा? No
counselor can give you rest. कोई भी सलाहकार आपको आराम नहीं दे No सकता। church can give you rest. कोई कलीसिया आपको आराम नहीं दे No सकता। religious leader can give you rest. कोई धार्मिक अगुवा आपको आराम नहीं दे सकता। No rituals and yoga can give you rest. कोई भी परंपरा या योगा आपको विश्राम नहीं दे सकता। No meditation can give you rest. कोई भी मनन और चिंतन आपको विश्राम नहीं दे I'm सकता। not talking about the rest of the body. मैं शारीरिक विश्राम की बात नहीं कर रहा हूँ। I'm talking about the rest of the soul. मैं आपके प्राण के विश्राम की बात कर रहा हूँ। Amen. Amen. And Jesus knew the people are so troubled. और यीशु मसीह जानता था लोग का प्राण कितना विचलित है। There is fight in the house. वहाँ पर परिवार में लड़ाई और झगड़े There हैं। is fight in the office. उनके कार्यालय में लड़ाई है। There is confusion in business. उनके व्यवसाय में असमंजस है। The whole day is all disturbed. और पूरा उनका दिन ऐसे असमंजसताओं में भरा हुआ है। The only person who is calling for rest is Jesus Christ. और केवल एक ही व्यक्ति है जिसने विश्राम के लिए आह्वान किया, वो यीशु मसीह है। Come to me. मेरे पास आओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Don't go there. वहाँ मत जाओ। Don't go there. वहाँ भी मत जाओ। Come to me. केवल मेरे पास में आओ। All. तुम सब लोग You who labor जो परिश्रम करते हैं and are heavy laden, और बड़े बोझ से दबे हुए हैं, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. हालेलुया। That rest you will find in the place of prayer. और वो विश्राम आपको केवल प्रार्थना के स्थान पे ही मिलेगा। Hallelujah. Amen. That rest you will find in the place of by reading the word. और वो विश्राम केवल आपको परमेश्वर के वचन का अध्ययन में मिलेगा। That rest you will find at the bosom of Jesus Christ. और वो विश्राम केवल आपको यीशु मसीह की बाहों में मिलेगा। There is a songwriter says, इसलिए गीत का लिखने वाला कहता है, there is a place of quiet rest और एक शांति के साथ विश्राम का स्थान है near to the heart of God. परमेश्वर के हृदय के करीब। Hallelujah. Amen. Where the powers of hell cannot molest. जहाँ पर नरक की सामर्थ आपको विचलित नहीं कर सकती, Near to the heart of God. वो केवल परमेश्वर के हृदय के करीब है। Like a mother एक माता के समान who stills the child. जो अपने बच्चे को अपनी बाहों में संभाले हुए है। You can hush the ocean while. You can quiet the storm of the ocean. आप समुद्र के उस आंधी को देख, Like Jesus still the storm. जैसे यीशु मसीह ने उस आंधी को थाम दिया, तूफान को थाम दिया, So he can quiet your soul. उसी रीति से वो आपके प्राण को भी विश्राम देगा। Listen friends, मित्र, इस बात को सुने, your personal prayer life, आपका व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन nobody else can do it for you. कोई दूसरा आपके बदले उस स्थान को नहीं ले सकता। When you come to God जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं and you open your heart to Him, और जब आप अपने हृदय को खोलते हैं, there's a place you'll find rest. वही वो जगह है जहाँ परमेश्वर आपके प्राण को विश्राम देता Do है। thy friends despise, forsake thee? हो सकता है आपके मित्र आपको धोखा दे और छोड़ दें। Take it to the Lord in prayer. उन बातों को भी प्रभु के सामने प्रार्थना में लेकर के In His जाओ। arms He'll take and shield thee. वो अपनी बाहों में तुझे भर के थाम लेगा You will find the solace there. और वहाँ पर तू अपने विश्राम को पाएगा। Come to me, मेरे पास में आओ, all you that labor हे सारे परिश्रम करने वाले and heavy laden, और बोझ से दबे हुए लोग, I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. हालेलुया। When the mind is confused, जब हमारा मन असमंजस की स्थिति में है, there is nothing more we can think. अब वहाँ पर सोचने के लिए कुछ बचा नहीं। Take it to the Lord in prayer. उस बात को भी प्रभु के सामने प्रार्थना में लेकर के जाओ। Amen. Amen. Not only that offer, ये केवल एक अवसर ही नहीं, one more time. एक और बार Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, when He was leaving this world, जब वो इस जगत को छोड़ रहा था, His disciples were very sad उसके चेले बहुत निराश और हताश थे। and they were troubled in their mind.
उनके मन में वे विचलित थे। So he said to them, तो उसने उनसे कहा, John's Gospel 14th chapter, यूहन्ना का सुसमाचार उसके 14 अध्याय में 27th verse, उसके 27 वचन में उसने यूं कहा, wonderful, क्या ही अद्भुत बात है। hallelujah. आमीन। He's talking to his troubled disciples. वो अपने विचलित चेलों से बात कर रहा था। In the earlier few verses he says, let not your heart be troubled. और आरंभ के कुछ वचनों में उसने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। In my Father's house are many mansions. मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। Now he's saying, अब वो यहाँ पर कहता है, peace I leave with you. मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। Amen. आमीन। I'm going. मैं जा रहा हूँ, I leave my peace with you. परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace I give unto you. अपनी शांति जो मैं तुम्हें देता हूँ, Not as the world giveth, give I unto you. जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। Let not your heart be troubled, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, neither let it be afraid. ना तुम भयभीत हो। Hallelujah. Amen. Hallelujah. आमीन। You know, many things come to disturb our peace. बहुत सारी बातें हमारे शांति को भंग करने के लिए उत्पन्न होते हैं। You do not know from where they come. आपको पता नहीं वो कहाँ से आपके पास आ गए। Everything is going on fine and suddenly there's a storm. सब चीजें अच्छी चल रही है, अचानक ही एक तूफान वहाँ आ गया। You do not know which way to turn. आपको पता नहीं किस दिशा पे आप मुड़े। Where do I go from here? मैं इस स्थान से कहाँ जाऊँ? What is holding my future? मेरे भविष्य का क्या होगा? Oh Lord. हे प्रभु। And the scripture says, और वचन बोलता है, one time the disciples were in a storm. एक बार चेले तूफान में फंस गए। And it was blowing upon them. और वो तूफान उन पर प्रबल होता गया। They were fishermen, they had been in many storms. और वे मछुआरे थे और ऐसे बहुत सारे तूफानों का वे सामना कर चुके थे। This one was, they could not face it. परंतु ये जो तूफान था, उनके सहन शक्ति या सामना करने से बाहर था। And Jesus was sleeping in the boat. और यीशु मसीह स्वयं उस नाव पर आराम कर रहे थे। So they came to him and said, Master. और वे चेले अचंभित होकर यीशु मसीह के पास आए। They said, carest thou not that we perish? और उन्होंने इस प्रकार से कहा, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? Are you thinking like that? क्या आप ऐसा सोचते हैं? Don't you care, God? Things are happening. क्या प्रभु तू नहीं देख रहा कैसी चीजें हो रही हैं? Everything is gone off. सारी चीजें विपरीत दिशा में जा रही है। The storm is raging high. और तूफान की जो गति और ऊंचाई है वो बढ़ रही है। We perish, O Master. हम नाश हुए स्वामी। And Jesus rose up, यीशु मसीह वहां पर उठे, looked at the storm, और उन्होंने तूफान की ओर देखा, and said to the storm, और उन्होंने उस तूफान से कहा, peace, be still. शांत हो और थम जा। Immediately, तुरंत वो तूफान थम गया, the waves ceased. वो लहरें थम गई। If Jesus is in your boat, यदि यीशु मसीह आपके नाव में है, you fear no storm. तो आप ऐसे किसी भी तूफान से भयभीत नहीं होंगे। Hallelujah. Hallelujah. No man could help. कोई मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता। Only Christ could help that time. केवल मसीह यीशु उस समय आपका सहायक हो सकता है। Peace. शांति। सारी चीजें वहां थम गई। Be still. थम जा। Oh, what a word. क्या ही अद्भुत ये वचन थे। And they said, they looked at him and said, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, what manner of man is this? ये किस प्रकार का मनुष्य है? Winds and the waves obey
His voice. आंधी और तूफान भी जिसकी आज्ञा का पालन करते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You may not be in the storm today. हो सकता है आज आप ऐसे तूफान में ना हो, Tomorrow it might come. हो सकता है कल वो तूफान में आप घिर Maybe जाएं, after a year it might come. हो सकता है सालों पश्चात आप इस तूफान में घिर जाएं। Remember one thing. एक बात को स्मरण रखना, Christ is control of the यीशु winds and the waves. यीशु मसीह सारी आंधी और तूफान के ऊपर नियंत्रण करने वाला है। Hallelujah. Amen. Don't think your efforts will still the storm. ये ना सोचें कि आपका प्रयास उस तूफान को शांत कर देगा। Don't think your efforts will save your soul. ऐसा ना सोचें कि आपका एक प्रयास आपके प्राण को बचा लेगा। Don't think your wisdom will help you that time. ऐसा ना सोचें कि आपकी बुद्धि आपकी सहायता करेगी उस तूफान में। Christ and Christ alone. केवल और केवल मसीह यीशु। Hallelujah. Only Christ can do it. केवल मसीह कर सकता है। Peace. उसने कहा शांति, And that same Christ is saying, और वही मसीह कह रहा है, my peace I leave with you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Hallelujah. Amen. Everything around you will be in a mess. आपके आसपास के सारी चीजें अव्यवस्थित और बिगड़ी हुई है। Jesus said, यीशु मसीह तो भी कहता है, my peace अपनी शांति I leave with you. मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace मैं अपनी शांति I give to you. तुम्हें देता हूँ। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो Don't be afraid. और ना भयभीत हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। He's the giver of everything good. वो सारे अच्छे चीजों का देने वाला है। And you remember, और आपको स्मरण होगा, after Jesus died, यीशु मसीह की मृत्यु के the पश्चात, disciples were again in a big storm. उसकी यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात भी, They were afraid. They said, their enemies. और वो डरे हुए और भयभीत थे। They were hiding themselves. वे अपने आप को एक स्थान पर छुपा लिए। Christ is risen. मसीह जी उठा Some था। people came and told them also. कुछ लोगों ने आया और उनसे कहा, They did not believe it. परंतु चेलों ने उन बातों की प्रतीति नहीं की। And suddenly, और अचानक ही the doors are closed, windows closed, Jesus appears. उन जिस जगह पर ये चेले थे, उस जगह के खिड़की दरवाजे बंद थे, यीशु मसीह उनके बीच आ खड़ा हुआ। And you know और आपको मालूम what he said? उसने क्या कहा? They were afraid. वे भयभीत और डरे You know what हुए थे। Jesus said? आपको मालूम है यीशु मसीह ने क्या कहा? Peace be unto you. यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें शांति मिले। You know God knows our troubles. आपको मालूम है परमेश्वर हमारी हर एक समस्या को जानता है। He knows every tear that falls. आपके आंख से बहने वाले हर एक आंसू का वो लेखा रखता है। He will hear you when you call. और जब आप उसे पुकारते हैं, वो आपकी सुनता है। Amen. Amen. My peace I give to you. अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ। My peace I leave with you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। Let not your heart be troubled. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। Amen. Amen. Don't let it be afraid. और ऐसा ना हो कि हम भयभीत हो जाएं। Peace be unto you. तुम्हें शांति मिले। Amen. Amen. The source of our peace हमारी जो शांति का स्रोत है, is Jesus Christ. वो केवल यीशु मसीह है। Amen. Amen. Again He is offering, He is giving to us. उसके पश्चात फिर से वो हमें देता है। He is giving to us eternal life. वो हमें अनंत काल का जीवन देता है। John's Gospel 10th chapter, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 27 and 28 says, उसका 27 और 28 वचन में इस प्रकार My से, sheep hear my voice and I know them and they follow me. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे चलती हैं। And I give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। Amen. Amen.
He is giving us another offer. वो एक और अवसर आपको और मुझको देता है। The earlier one, the call was for everybody. और पहले में एक बुलाहट सब के लिए थी। And the second one for peace was for his disciples. और दूसरी बार जो अवसर था वो उसके चेलों के लिए था। Now he's telling about his own sheep. अब वो अपने स्वयं की भीड़ों के विषय कहता है। That is his own disciples. जो उसके अपने चेले थे, His own believers. उसके अपने विश्वासी लोग थे। And he said unto them over here, और यहाँ पर वो इस प्रकार से कहता है, I give unto them eternal life. मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। And their soul will not perish. वे कभी नष्ट न होंगी। Neither shall any man pluck them out of my hands. और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। You know, today such a lot of dependence is upon insurance company. और आज आप देखेंगे बहुत सारे निर्भरताएं बीमा कंपनियों के ऊपर हमारा हो गया है। I am not saying don't get insured. और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीमा ना कराएं। But don't trust that only. परंतु ये कह रहा हूँ केवल उन पर आप आश्रित ना हो जाएं। One of the companies shows two hands like this in the end center. और एक बीमा कंपनी का जो प्रतीक है वो ऐसे दो हाथ के बीच में एक जलता हुआ दीपक है। इस हाथ के पीछे से आप फूंक मार दो वो बुझ जाएगा, वो बुझ जाएगा। What Jesus is saying. परंतु यीशु मसीह जो कह रहे हैं, No one can pluck you out of my hand. कोई भी तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। Hallelujah. Amen. Insurance. वो एक आश्वासन है। Eternal insurance company. अनंत काल का आशा का कंपनी है। Amen. आमेन। I give to them eternal life. मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ। After death, मृत्यु के पश्चात भी we live forever. हम सदा काल के लिए जिएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And he's saying, और वो कह रहा है, they shall never perish. वे कभी भी नष्ट ना होंगे। No man can pluck them out of my hands. कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। Next verse says, उसके आगे का वचन कहता है, no one can pluck them out of my father's hand. और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से भी नहीं छीन सकता। Hallelujah. Amen. I give मैं देता हूँ rest. विश्राम, I give peace. मैं शांति देता हूँ। Jesus said, I give eternal life. और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं अनंत जीवन का देने वाला हूँ। Amen. Amen. Are you here? क्या आप यहाँ पर हैं? Again he says, उसके पश्चात फिर वो कहता है, I give unto you the keys of the kingdom. और मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां देता हूँ। Hallelujah. Amen. Matthew's Gospel 16 chapter 19th verse. मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन में लिखा है, I will give unto thee the keys of the kingdom. मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां देता हूँ। Whatsoever you shall bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven. जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। Listen, listen, listen. सुने, ध्यान दें। You can have the key and never use it. आपके पास चाबी है परंतु आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। Your grandfather has left something for you, आपके जो दादाजी थे उन्होंने आपके लिए कुछ छोड़ के गया, and the key is in your hand, और चाबी आपके हाथ में है, and the trunk is closed. और जो संदूक है वो बंद पड़ा है ताले से। It might be filled with treasure, हो सकता है वो खजाने से भरा हुआ हो, but you have not opened it. परंतु अब तक आपने उस चाबी से उसको खोला नहीं। Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, I give you the keys of the kingdom. मैं तुम्हें राज्य की कुंजियां देता हूँ। If you don't use it, you will not receive it. यदि तुम इसका इस्तेमाल नहीं करोगे तुम्हें कोई भी लाभ नहीं होगा। Amen. Amen. Whatsoever you shall bind on earth, जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे, not angels, स्वर्गदूतों के विषय में नहीं, you. तुम जो बांधोगे। Amen. आमेन, आमेन। कहाँ गए? Hello. Praise the Lord. Amen. आमेन। Whatsoever you shall bind, जो कुछ भी तुम बांधोगे bound in heaven. वो Hallelujah. स्वर्ग में
बंध जाएगा। Amen. Amen. Whatsoever you shall loose on the earth, जो कुछ भी तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे, तुम open खोलो on the earth, इस पृथ्वी पर, shall be opened in heaven. वो स्वर्ग में खुल जाएगा। I give you the keys. मैं तुम्हें कुंजियां देता हूँ। Amen. I give you the keys. मैं तुम्हें कुंजियां देता हूँ। No, don't hang it in a belt. आप उस चाबी को अपने बेल्ट के साथ में टांग के न रखें। Use it. उसका इस्तेमाल करें। The mysteries of the kingdom God has given to us. परमेश्वर का राज्य का भेद परमेश्वर ने आपको और मुझको दिया है। For so long, all this what we hear is only here, and when we go away, it's all forgotten. और जब तक हम यहाँ हैं, हम इस बात को सुन रहे, लेकिन जैसे ही निकलते कई बार हमारे दिमाग से बात उड़ जाता है। Don't do that. ऐसा ना करें। Use the key. उस कुंजी का इस्तेमाल करें। God, you said it, and I will do it. Amen. और आप कहें, प्रभु तूने कहा है और मैं करूँगा। Then he goes on to say, तब उसके पश्चात वो आगे कहता I है, will give you a mouth and wisdom. मैं तुम्हें बोली और बुद्धि दूंगा। You don't meditate what you're going to say. तुम्हें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि तुझे क्या कहना होगा। I will give you a mouth and a wisdom to speak. मैं तुझे बोली और बुद्धि दूंगा, तुझे क्या बोलना है उसके लिए। All your adversaries will not be able to stand before you. तेरे सारे जो लोग हैं जो तुझ पर दोष लगा रहे हैं, वो योग्य नहीं रहेंगे तेरी बातों का जवाब देने के लिए। Paul was learned in all the wisdom of the law. पौलुस व्यवस्था की सारी बातों का ज्ञानवान था। But he could not resist the wisdom of Stephen. परंतु स्तिफनुस के बुद्धि के सामने पौलुस की सारी बुद्धिमत्ता धरी रह गई। He spake under the anointing of the Holy Ghost. क्योंकि स्तिफनुस पवित्र आत्मा के अभिषेक और आत्मा की बुद्धि से बोल रहा था। Amen. आमेन। So what they did, they killed him. तो उन्होंने क्या किया? जब उसका सामना नहीं कर पाए, उसे पत्थरवाह कर दिया। Wisdom comes from God. बुद्धि का देने वाला एकमात्र परमेश्वर है। Amen. Amen. Ask God for wisdom. परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, He will give us wisdom. वो आपको और मुझको बुद्धि देगा। Students, विद्यार्थी लोग ask God for wisdom. परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। Businessmen, व्यापारी लोग ask God for wisdom. परमेश्वर से बुद्धि को मांगे। Married and unmarried people, विवाहित लोग बुद्धि को परमेश्वर से मांगे। ask God for wisdom. परमेश्वर से मांगे बुद्धि को। Hallelujah. हालेलुया। Not only ask God for wisdom, और केवल परमेश्वर से ही मांगे। ask God for words to speak. और परमेश्वर से ना केवल बुद्धि वरन शब्दों को भी मांगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि death and life is in the power of the tongue. क्योंकि जीवन और मृत्यु की सामर्थ आपके जुबान पर है। And when God gives us the language, और जब परमेश्वर आपको बोली और शब्द देगा, when God gives us the word, जब परमेश्वर आपको वचन देगा, when the Holy Ghost gives us the tongues, जब पवित्र आत्मा आपको बोली और भाषा देगा, something will happen in the divine. कुछ अलौकिक चीजें वहां पर होंगी। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Don't stop speaking in tongues. आप अन्य भाषा में बोलना ना बंद When you करें। speak in tongues, you speak of mysteries. जब आप अन्य भाषा में बोलते हैं, आप परमेश्वर से भेद की बातों को बोलते हैं। Life and death is in the power of the tongue. जीवन और मृत्यु की सामर्थ हमारे जुबान में है। And the Holy Ghost takes over our tongue. और जब पवित्र आत्मा हमारे जुबानों पर नियंत्रण लेगा, He can penetrate through all the powers of the darkness and can give us the victory. और वो आत्मा की सामर्थ के द्वारा हमारे वचनों अंधकार की बातों को भेदते हुए जाएगा। Don't let the devil hit you again and again. और अवसर ना दे कि शैतान बारंबार आपको मुक्के मारे। Rise to your responsibility. अपनी जवाबदारी में खड़े हो। I have the keys of the kingdom. मेरे पास राज्य की कुंजियां And हैं। I tell you, devil, in Jesus' mighty name, और शैतान मैं तुझसे यीशु के नाम से कहता हूँ, take your hands off God's property and God's people. परमेश्वर के लोगों और संपत्ति से अपने हाथ को उठा। Hallelujah. Hallelujah. I will give you a mouth to speak. मैं तुम्हें बोली दूंगा बोलने के लिए। Jeremiah, I cannot speak, he said. यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मैं बोल नहीं सकता। God said, who made your mouth, Jeremiah? परमेश्वर बोलता है, यिर्मयाह तेरे मुख को बनाने वाला कौन है? I put my word in your mouth. मैं अपने वचन को तेरे मुख में डालूंगा। Glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And Jeremiah says, और यिर्मयाह
you the kingdom. मैं तुझे राज्य दूंगा। Fear not, little flock. हे छोटे झुंड, भयभीत मत हो। It is your Father's good pleasure और ये तेरे पिता को भाया कि वो तुझे राज्य को दे, give you the kingdom. ताकि वो तुझे राज्य को दे। What are we asking? हम कौन सी बातों को परमेश्वर से मांग रहे हैं? Ask for nations, God says. परमेश्वर बोलता है तुम उससे राष्ट्र को मांग। Amen. Amen. Just not Bilaspur. केवल बिलासपुर नहीं, Just not Chhattisgarh. केवल छत्तीसगढ़ नहीं, Ask of me. Ask of me. मुझसे मांग। All the nations. सारे राष्ट्रों को I will give it to you. मैं वो सब तुझे यूं ही दे दूंगा। Hallelujah. Amen. All the nations are like a drop of water in a bucket for him. और ये सारा जो राष्ट्र है वो एक बाल्टी में एक बूंद पानी के समान परमेश्वर के सम्मुख है। Then he goes on to say, तब उसके पश्चात वो कहता, I give you power. मैं तुझे सामर्थ दूंगा। Hallelujah. Luke's Gospel 10 chapter 19 verse. लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, Behold, I give unto you power. Glory. Hallelujah. Turn that. लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 19 वचन। Behold, I give unto you power to tread upon serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Nothing shall by any means hurt you. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। Amen. 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 Behold, देखो, Jesus is saying, यीशु मसीह कह रहे हैं, I give unto you power, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ tread upon serpents, कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदो, meaning demonic things, अर्थात जो दुष्टात्मा की चीजें हैं, all the magic, jadoo tona, सारे जादू टोना तंत्र मंत्र को, all the tantric, सारे तांत्रिक के प्रभाव को, all what the enemy is planned, जो कुछ भी शत्रु ने तेरे लिए योजना को बनाया है, you shall overcome them. तू उसके ऊपर प्रबल होगा। Hallelujah. Amen. You will tread them under your feet. तू उन्हें अपने पांव तले रौंदेगा। They shall not by any means harm you. उससे तुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। Amen. 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 Let them do what they want to do. जो कुछ उन्हें करना है करने दो। Greater is he who is in me. बड़ा है वो जो तुम में है, उनमें जो है उससे बढ़कर के, Than he that is in the world. जो दुनिया में है उससे बढ़कर के है जो तुम में है। Nothing shall by any means harm you. शत्रु से तुझे किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let them jump from morning till evening. उन्हें सुबह से शाम तक करने दीजिए। You sleep peacefully. आप विश्राम के साथ में अच्छा नींद लीजिए, Because God's angel watches over you. क्योंकि परमेश्वर के दूत आपकी निगरानी करते हैं। आमीन, हालेलुया। They seek to kill you. वो प्रयास में रहते हैं कि आपको घात करें। You say, no, there's nobody like that. और आप बोलेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। You're wrong. You're wrong. You don't know what people are. आप गलत हैं, आपको मालूम नहीं लोग क्या करते हैं। They will not kill you with the knife. वो आपको अपने चाकू से नहीं मारेंगे, Kill you with the tongue. परंतु वे आपको अपनी जुबान से मारेंगे। God is my refuge. परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। Hallelujah. No weapon that is formed against you shall prosper. कोई भी हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया गया है तुझ पर प्रबल नहीं होगा। Every tongue that shall rise against you, you will condemn. हर एक जुबान जो तेरे विरोध में उठता है तू उसे दोषी ठहराएगा। This is the privilege of the servants of God. ये परमेश्वर के सेवकों का सौभाग्य है। I give you power. मैं तुझे सामर्थ देता हूँ। Hallelujah. Matthew's Gospel 10 chapter 1 verse 17. मत्ती का सुसमाचार 10 अध्याय उसके पहले वचन में भी When he had called 12, जब उसने अपने 12 चेलों को बुलाया, he gave them power.
उसने उन्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया। He did not say, I will give you, he gave them. उसने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें दूंगा, परंतु उसने दिया। Against unclean spirits. अशुद्ध आत्माओं पर To cast them out कि उन्हें वो बाहर निकाले, and to heal all manner of sickness and all manner of disease. हर प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करने का अधिकार दिया। Amen. आमीन। How? कैसे? In my name मेरे नाम से you shall cast out demons. तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। Hallelujah. आमीन। The other day one demon possessed lady was here. और पिछले दिनों में यहाँ एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित महिला थी। Without doing anything, बिना कुछ किए she could not stand the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में इस जगह पर खड़े नहीं हो पा रही थी। Demons began to shiver. और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो थरथरा और कांप रहे थे। There's the power in the name of the Lord Jesus. यीशु मसीह के नाम में वो कुव्वत है। Hallelujah. आमीन। Many have been delivered over here. और इस स्थान पर ऐसे बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया। One lady had come एक महिला यहाँ आई थी and we said, from where you brought her? और हम Who told you देखा about this place? और हमने उनसे पूछा किसने आपको इस जगह के विषय बताया? He said, the demon himself told. तो उसने कहा दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बोल रहा था उधर मत ले जाना। कि मुझे उस स्थान पर तुम लेके मत जाना। So they thought, let's take her there only. तो जो लोग थे उसके उन्होंने सोचा चलो हम इसको वहीं लेके चलते They हैं। brought her from some village. और वो कोई दूर के एक गांव से उसको लेकर के आए थे। Amen. आमीन। You know what she said? आपको मालूम है उसने क्या कहा? There is fire in this place. उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसने कहा इस जगह पर चारों ओर आग चल रहा है। आमीन। Hallelujah. We can see. हम नहीं देख पाते। God is here. परमेश्वर यहाँ पर Our है। God is consuming fire. हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। No witchcraft will be able to prevail over you. और कोई भी तंत्र मंत्र की शक्ति आप पर प्रबल नहीं होगा। Amen. Amen. Let them try it. Let them do it. उन्हें प्रयास करने दीजिए। They will utterly fail. और वे अंततः धराशायी हो जाएंगे। Because क्योंकि Christ is in us. मसीह यीशु हमारे अंदर है। Amen. Amen. I give you power. मैं तुम्हें सामर्थ्य देता हूँ। How do we receive the power? उस सामर्थ्य को हमें कैसे ग्रहण When करना? the Holy Ghost will come upon you, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा you shall receive power. तुम सामर्थ्य पाओगे। Amen. Amen. If you have not received the baptism of the Holy Spirit, यदि आपने अब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, receive it. Receive it by prayer. आप प्रार्थना के में रह करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। Goes on to say, वो आगे फिर बोलता है I will give you the water of life. मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा। Whosoever drinketh of this water shall thirst again. जो कोई भी इस पानी में से पिएगा वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। But the water that I give to you माफ कीजिए, जो कोई इस पानी में से पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो पानी मैं तुम्हें दूंगा shall never thirst. वो फिर कभी अनंत काल तक प्यासा ना होगा। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. What? Never thirst again? क्या आपको फिर से प्यास नहीं लगेगी? No, never thirst again. नहीं, वो आत्मिक फिर से वो प्यास नहीं लगेगी। The things of the world will grow strangely dim. दुनिया की वो जो चीजें हैं, Because when you see Jesus, जब आप यीशु को देखते हैं, He is the Alpha, the Omega, the beginning and the ending. वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत है। There are so many things, but I skip. बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं उन्हें छोड़ रहा हूँ। It says again, फिर से वो बोलता है, I give you my life. मैं तुम्हें अपना जीवन देता हूँ। What more could He give? और इससे ज्यादा वो क्या दे सकता है? 10th chapter of John, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय, 11th verse. उसके 11वें वचन में लिखा है, I am the good shepherd. अच्छा चरवाहा मैं हूँ Good shepherd giveth his life for the sheep.
और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। As we read in the scripture, Jesus on this earth had nothing of his own. और जैसे हम वचन में पाते हैं, यीशु मसीह जब शारीरिक रूप में थे इस पृथ्वी पर, उनका अपना कुछ भी यहाँ नहीं था। He came to his own received him not. वो अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। Somebody said, "Where do you dwell, Master?" और किसी ने पूछा, स्वामी तेरे रहने का स्थान क्या है? He says, "Foxes have holes, birds of the air have nests. Son of man hath not where to lay his head." उसने कहा, आकाश के पक्षी और लोमड़ियों के पास रहने के लिए फट है, परंतु मनुष्य के पुत्र को सर छुपाने की भी जगह नहीं है। He borrowed Simon Peter's boat to preach. और वो सिमोन पतरस के नाव पर चढ़ करके प्रचार करने लगा। He borrowed an ass to travel. और उसे दूसरे के गधे के बच्चे को इस्तेमाल करना पड़ा अपनी यात्रा को करने के लिए। Even the grave was not his own. यहाँ तक कि जिस कब्र में उसे रखा गया वो भी उसका अपना नहीं था। It belonged to Joseph of Arimathea. और अरमितिया के यूसुफ नामक व्यक्ति का ये कब्र था। And he says, और उसने कहा, "I give my life कि मैं अपना जीवन तुम्हें देता हूँ, to you. क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? Everything I give." हर एक चीज़ मैं तुम्हें देता हूँ। Lastly, he said, और अंत में उसने कहा, as he broke bread, he said, और जैसे उसने रोटी को तोड़ा, "Eat this in remembrance of my broken body." उसने अपने चेलों से कहा, मेरे टूटी हुई देह के स्मरण के लिए इसे किया करना। And when he gave them the cup, और उसके पश्चात जब उसने उन्हें प्याला दिया, "Drink this in remembrance of my shed blood." उसने कहा, मेरे बहाए गए लहू के निमित्त इसको करना। Nothing was his own. उसका अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं था। My life मेरा जीवन I give to you. मैं तुम्हें देता हूँ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That precious blood of Jesus. क्या ही बहुमूल्य कीमती यीशु का लहू। Not one drop he remained in his body. उसके लहू का एक कतरा, एक बूंद भी उसके शरीर में बाकी नहीं था। Because when the centurion pierced the spear in his side, क्योंकि जब उस सूबेदार ने उसके पसली पे भाला को मारा, imagine, आप इस बात की कल्पना करिए, when he pulled it, और जब उस सूबेदार ने उस भाले को खींचा, first blood came out, लिखा है पहले लहू बहकर निकला, then water began to drip. उसके पश्चात उसी घाव से पानी बहने लगा। Not one drop of blood for his own, it's all for you. उसने एक लहू का कतरा भी अपने लिए नहीं बचा के रखा, आपके और मेरे लिए बहा दिया। How can we doubt his love? हम कैसे उसके इस अद्भुत प्रेम पे संदेह कर सकते हैं? What more could he give? इससे और ज्यादा वो आपके लिए क्या दे सकता था? The question is today, और आज जो एक प्रश्न है, Jesus will ask us, यदि यीशु मसीह आपसे और मुझसे पूछे I gave my life for you, कि मैंने अपना जीवन तेरे लिए दे दिया, my precious blood I shed, मैंने अपने बहुमूल्य लहू को तेरे लिए दे दिया, that you might ransomed be and risen from the dead. ताकि तू छुटकारा पाए और मृतकों में से जी उठे। I gave it all for you. मैंने अपना सर्वत्र तेरे लिए बलिदान कर दिया। What have you given me? तू मुझे क्या देता है? He gave us rest. वो हमें विश्राम देता है, He gave us peace. वो हमें बोली शांति देता है, He gave us eternal life. वो हमें अनंत जीवन देता है, He gives us the kingdom. वो हमें राज्य देता है, He gives us the water of life. वो हमें जीवन का जल देता है। Now अब He gives us His life. वो अपना जीवन भी हमें दे दिया। मेरे गुनाह की तूने सजा
दे में प्यार के मेरे गुनाह की तूने सजा चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने कुछ ना